सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। हम क्लास 10th का एसएसटी पढ़ रहे थे जिसमें हमने चालू किया था पॉलिटिक्स। सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इन दैट द वेरी फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, वी हैव कंप्लीटेड द पावर शेयरिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर पावर शेयरिंग, please feel free to give your advice in the comments and you can ask questions in the comment section of that chapter and I will definitely clear all your doubts. If you have any doubts, please feel free to share your questions and queries with us. So I would assume that power sharing is clear to all of you. Now we will move on to the next chapter, that is federalism. Federalism को समझना है हमें. What is federalism? So the basic understanding of the federalism is when the power, like power sharing, you have studied the first chapter power sharing. One type of power sharing you can say is federalism. So federalism एक तरह की power sharing है. क्या होती है federalism? Federalism is a type of administration of a government. कोई government इस तरह चलती है जब government का कोई एक केंद्रीय power ना हो, बल्कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की और अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट की, दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. व्हेन द पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ ए गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म. सो फेडरलिज्म का बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ये है. सो वी आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फेडरलिज्म. एक्चुअली क्या है फेडरलिज्म, आपको एक बार दोबारा से समराइज कीजिए. द फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द पावर्स आर नॉट वेस्टेड इन ए सेंट्रल अथॉरिटी. सारी पावर्स किसी एक केंद्रीय अथॉरिटी के पास नहीं होती, बट द पावर्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, है ना, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. सो पावर डिवाइड होती जाती है नीचे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ऑफ द पावर इज कॉल्ड फेडरलिज्म. Now the federalism, there are some key points that indicate federalism. How can you say what are the important things that are accompanied in this federalism? Like first thing, in federalism there are more than one level of government or more than two level of government. So government के दो या दो से ज्यादा levels होते हैं, एक level कभी नहीं होगा क्योंकि एक मतलब centralize हो गया. So more than two levels of government, like in our country we have central government, then state government. So more than one level of government. Central government पहला, state government, फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो नगर पंचायत, म्यूनिसिपालिटी. So more than one level of government you see is a type of federalism, is practice of federalism. Second चीज, the government, एक तो government कई levels में होती है. Second चीज, the also government is divided into different tiers of the government. There are different tiers of the government. यानी government की पूरी मशीनरी जो है उसको चलाने के लिए अलग अलग tiers बने हुए हैं. So government के different tiers हैं. Like क्या बोलते हैं tiers को? Levels तो हो गया, central government, state government, and this is level. What are the different tiers of government? Different tiers of government is the day-to-day business of the government are done by different authorities. Like one, make the laws, they are called legislature. लोकसभा, राज्यसभा एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सब मिलाकर लेजिस्लेचर, इनका काम है कानून बनाना. सेकंड चीज, जो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं इन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव. सो कानून बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने. जो इंप्लीमेंट करेंगे उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लाइक प्रेसिडेंट. और सबसे नीचे तक जाओगे तो डीएम, जो आपके जिले का होता है, दे आर एग्जीक्यूटिव्स. They do not make the laws, they implement the laws. Once the laws have been made, are to be implemented by the executives. Third tier of government is judiciary. Once the law is made, once the law is implemented, if the law is broken or there is some malfunction in the law, or if there is some kind of loopholes, कुछ कमी है अगर लॉ में, या लॉ कहीं टूट रहा है, तो लॉ की रक्षा कौन करेगा? Who will protect the law? Judiciary. The courts, there is a hierarchy of court, and at the apex of the hierarchy of the court lies the Supreme Court in New Delhi. So there are Supreme Court and smaller high courts, district court. So एक hierarchy है court की, जिसको मिला के क्या कहते हैं? Judiciary. So there are different tiers of government: legislature, executive, and judiciary. This is also a type of federalism.
नाउ जो जुरिस्डिक्शन है इन सब की, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव की, ये सारी इनकी जो पावर्स हैं दे आर क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली इनकी पावर मेंशन्ड है कि लेजिस्लेचर को क्या करना है, एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, जुडिशरी को क्या करना है। सो देयर पावर्स आर क्लियरली डिफाइंड, सो देयर इज नो केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज पावर्स, एंड इफ देयर इज नो मिक्सिंग इन दीज पावर्स देयर विल नॉट बी एनी डिस्प्यूट अराइजिंग इन दिस। ठीक, ये चीज हो गई। नाउ अगर स्टेट गवर्नमेंट की मान लीजिए कुछ पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को छीन नहीं सकती। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म। ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर सकती है। सो द पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर क्लियरली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन कैन यूनिलैटरली अल्टर और चेंज द पावर्स गिवन टू द अदर वन। किसी एक में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने दम पे अकेले किसी और की पावर छीन सके। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन टेक अवे और अब्राइज द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड द सेम लाइज विथ स्टेट गवर्नमेंट और वाइस वर्सा। देन इफ देयर आर एनी डिस्प्यूट्स, अगर कुछ लड़ाई होती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर कुछ लड़ाई होती है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में कोई लड़ाई हो गई या जुडिशियरी से कोई लड़ाई हो गई, who will resolve these disputes, these fights? So these fights or these disputes will be resolved by Supreme Court. So Supreme Court of India is the umpire which will resolve the ladai jhagde in different tiers of government or different levels of government. Any dispute in these levels or these tiers of the government will be ultimately solved by the Supreme Court of India. So this is how the federalism is practiced. Now in our country, how we can say the federalism is there? कैसे फेडरलिज्म हमारी कंट्री में है? हमारी कंट्री में जो लॉज बनते हैं वो क्लियरली 3 तरह की लिस्ट मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। All these 3 lists are clearly defined in 7th schedule of Indian Constitution. What is schedules? Schedules are a part of Indian Constitution. When we will study the Indian Constitution in our GS classes, regular GS classes for UPPSC and all government exams, then you can have the knowledge about the whole working of the Constitution thing. So, in the schedules, 7th schedule has clearly defined the 3 type of list. Union list, इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेकंड इज स्टेट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है, गिवन प्रोवाइडेड द कंडीशन दैट इफ ऑन द सेम सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया, देन किसका लॉ माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ इन द केस ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट नहीं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे सिर्फ कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। नाउ व्हाट आर दिस लिस्ट और इसमें कैसे सब्जेक्ट होते हैं? जैसे अगर हम कहते हैं यूनियन लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कौन सिर्फ कानून बनाता है? केंद्र सरकार। तो ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? द सब्जेक्ट दैट आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें वो सब्जेक्ट होते हैं यूनियन लिस्ट में जो पूरी कंट्री के इंपॉर्टेंस रखते हैं, सो दैट कोई स्टेट इसको चेंज ना कर पाए, क्योंकि ये पूरी कंट्री के लिए जरूरी है। लाइक डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी के ऊपर कोई लॉ बनाना है तो अगर उड़ीसा कहेगा कि आर्मी को ये वर्दी दो, यूपी कहेगा आर्मी को ये वर्दी दो, पंजाब कहेगा आर्मी को ये गन दो, वो कहेंगे आर्मी को ये वेपन दो, तो आर्मी ही स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी बेचारी, आर्मी को ही समझ में नहीं आएगा क्या पहनना है क्या नहीं। सो जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या जो ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस पे कभी स्टेट लॉ नहीं बनाते हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जैसे हमने डिफेंस या आर्मी को समझाया, तो दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो दिस इज
a subject of union list on which only and only central government will make any law. Besides the army, we also have currency. Currency भी पूरी कंट्री में एक तरह की रेगुलेट होगी, हर स्टेट अपनी अपनी करेंसी तो बना नहीं सकता. सो करेंसी इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. सो एम आई क्लियर ना? सो डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट आर mentioned on which central government, state government can make laws, and concurrent list पे दोनों बना सकते हैं. Now these are all about the list. Now how are we practicing federalism? हमारी कंट्री में फेडरलिज्म जो शब्द है इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? सो अगर आपको समझना है तो इसको एक टॉपिक में समझिए. लाइक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट आर्टिकल, पहला आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया जिसका नाम भारत है हिंदी में, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया है. फेडरलिज्म इज नेवर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बट जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसकी प्रैक्टिस किस तरह होगी? फेडरलिज्म के आधार पे. बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरलिज्म कहीं नहीं लिखा है, हमारे फेडरल शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है. बट वी adopted, we practice federalism. Like for example, लैंग्वेज पॉलिसी. हमारे कंट्री में जो लैंग्वेज पॉलिसी है, लाइक हम कह सकते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज. सो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी थी? हिंदी. बट जब पता चला कि हिंदी पूरे देश में सिर्फ 40% जनसंख्या बोलती है, तो पता चला सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग हिंदी है, तो सब लोग तो हिंदी से इतना खुश नहीं थे. एंड फॉर मोर एम्फेटिकली इफ आई से द साउथ इंडियन स्टेट्स आर कैन नेवर बी सो मच वेल वर्स्ड इन हिंदी. दे आर एक्चुअली वेरी प्रेटी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश. सो दे डिमांडेड दैट नॉट ओनली हिंदी, also English should be made as another official language. So इसको लेके हमारी कंट्री, देखिए जो पहला चैप्टर में आपने श्रीलंका में पढ़ा था, श्रीलंका में जबरदस्ती सिंघालीज लैंग्वेज को थोप दिया गया था वहाँ के तमिल्स के ऊपर. यहाँ ऐसा नहीं हुआ है. इंडिया में हिंदी को जबरदस्ती नहीं दिया गया है. हिंदी का जो स्प्रेड है उसको ग्रेजुअली बहुत प्रॉपर तरीके से फैलाया गया है ताकि किसी के ऊपर जबरदस्ती ना किया जाए. सो जो इंग्लिश थी, शुरू में इंग्लिश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज कहा गया था कि 1965 तक इंग्लिश का यूज होगा फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. बट आफ्टर 1965 इट वाज सीन दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी चेंज्ड, द यूज ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी अंडरमाइंड. सो आफ्टर 1965 एक लॉ बना जिसमें यह बताया गया कि इंग्लिश का यूज एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में indefinite टाइम तक कंटिन्यू होगा. सो नाउ वी हैव टू ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. सो दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास. हमने क्या किया? एक फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया, पावर शेयरिंग को प्रैक्टिस किया. हिंदी को जबरदस्ती नहीं रखा, बट इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ इनडेफिनेट टाइम के लिए कंटिन्यू किया गया. सो दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज थिंग जहां हमने फेडरलिज्म की प्रैक्टिस की. सेकेंड इज स्टेट्स. स्टेट्स पहली चीज क्या हमने देखी थी फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेज. नाउ स्टेट्स. हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं, हम जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय पूरी कंट्री दो तरह की क्लियर चीज़ों में डिवाइड थी. वन वॉज द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड सेकेंड वॉज द प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े, राजाओं की जगह. सो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस. जब इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटिश प्रोविंसेस इंडिया का पार्ट बन गया. बट जो रजवाड़े थे इनको ऑप्शन दिया गया कि आप इंडिया को ज्वाइन कीजिए, पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रहिए. बट थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज एबल डिप्लोमेसी, ही easily managed to get included in the India 559 princely states out of 562. टोटल 562 रजवाड़े थे, जिसमें 559 को 559 को 562 में से इंडिया में ज्वाइन करवा दिया वल्लभ भाई पटेल जी ने. 3 रजवाड़े ज्वाइन नहीं हो रहे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर. हैदराबाद को आर्मी एक्शन से ज्वाइन करवाया गया, बाकी जूनागढ़, कश्मीर, जूनागढ़ को भी एक प्लेबिसाइड किया गया, और आर्मी और जम्मू कश्मीर के साथ सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह वाला जो है.
सो इस तरह इंडिया बना। बाद में इंडिया में धीरे धीरे वहाँ के जो अपने अपने रीजनल लोग थे उन्होंने जोर दिया कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाया जाए। ऐसा पहला राज्य 1953 में बना, आंध्र प्रदेश। सो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट वॉज मेड ऑन द पब्लिक डिमांड एंड इट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। सो 1953 में आंध्र प्रदेश बना, और जैसे ही आंध्र प्रदेश बना पूरी कंट्री से लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड्स होने लगी। सो 1953 के बाद 1956 में गुजरात महाराष्ट्र बना, 1960 में आपका बॉम्बे बना, 1963 में नागालैंड बना, 1966 में पंजाब बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1975 में सिक्किम बना, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम बना, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ बना, 7 नवंबर 2000 उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 झारखंड बना। सो ऐसे सारे स्टेट्स बने, तो टोटल 28 स्टेट क्रिएट हुए। उसके बाद 2014 में तेलंगाना भी बना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द पीपल वी आर क्रिएटिंग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग? फेडरलिज्म को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर फुलफिलिंग द विश ऑफ द पीपल, व्हाट द पीपल विश वी हैव टू गिव देम। सो वी आर क्रिएटिंग स्टेट्स बिकॉज दे आर डिमांडिंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो ऐसे कई राज्य बने, और ना ही सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे, आप याद रखिएगा जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, ये सब जो स्टेट्स हैं ये लैंग्वेज के आधार पे नहीं बने थे, ये वहाँ के रीजन्स या वहाँ की जियोग्राफी के आधार पे बने थे। लाइक यूपी पूरा प्लेन में आता है और यूपी का एक हिस्सा पहाड़ों में जाता था, तो उस पहाड़ी हिस्से को यूपी से काट के उत्तराखंड बना दिया गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो नॉट ओनली बेस्ड ऑन द लैंग्वेज बट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी ऑफ द रीजन और द पीपल ऑफ द रीजन। लाइक झारखंड को लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया गया, झारखंड को वहाँ के ट्राइबल पीपल्स के डिमांड पे बनाया गया। सो कुछ लोग जो नॉर्मल लोग थे, जो नॉर्थ इंडियंस की थे, और एक ट्राइबल लोग थे जिनका कल्चर, जिनकी एथनिसिटी अलग होती है। सो उनके डिमांड पे उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य बनाया गया झारखंड। सो ऐसे कई राज्य बने हमारे कंट्री में। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने जिनको बोलते हैं राज्य बने लैंग्वेज के आधार पे, और इस तरह फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। हमारी कंट्री में जो लैंग्वेज पॉलिसी थी ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अलावा मैं आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब, कोई पोस्ट के लिए, यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन और you can give your question paper on any of these 21 languages that are mentioned in the constitution. So we are coming to the last topic of this chapter. Now the last topic of this chapter is decentralization. Any doubts regarding anything? Feel free to give your opinions in the comment and your queries. आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा दैट हाउ यू आर एक्चुअली ग्रेस्पिंग द चैप्टर, हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। सो लास्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब कई चीजें मिलके एक सेंटर में जाके मिल जाती हैं। कई चीजें मिलके जब एक सेंटर में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। कई चीजें मिलके एक बन रही हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा है, जब एक चीज टूट के कई चीजों में बिखरती है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द पावर्स आर डिवाइडेड फ्रॉम वन इनटू मैनी, डिसेंट्रलाइजेशन। सो इन आवर कंट्री इज वेरी बिग। हम जानते हैं श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वालों के बीच में इतना ड्रिफ्ट था कि आज तक वहाँ शांति व्यवस्था नहीं मेंटेन कर पाए। इंडिया में मोर देन 25 डायलेक्ट्स, मोर देन 30 लैंग्वेजेस, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को हम कैसे एक साथ रखते हैं? सो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कंटेन करता है इंडिया बाय द वे ऑफ पावर शेयरिंग और डिसेंट्रलाइजेशन। हमारी कंट्री में ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ 2 लेवल पे गवर्नमेंट नहीं है, एक और गवर्नमेंट बनी तीसरे लेवल पे जिसको हम बोलते हैं पंचायत। गाँव में, म्यूनिसिपालिटी, शहरों में, ये तीसरा लेवल है गवर्नमेंट का, जो बना था अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता, 2 लोगों के 2 कमेटी बनी थी, एक बलवंत राय मेहता, एक अशोक मेहता। सो हमारी कंट्री में बाद में जो बनी यानी अशोक मेहता, उसके आधार पे हमारे कंट्री में एक तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना जिसको बोलते हैं पंचायत,
और म्यूनिसिपालिटी, पंचायत गांवों में, म्यूनिसिपालिटी शहरों में। 73rd अमेंडमेंट, 73rd संशोधन एंड 74th अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 73वें संशोधन से संविधान में पंचायत को लाया गया, 74वें संशोधन से म्यूनिसिपालिटी को लाया गया। ये गांव में और म्यूनिसिपालिटीज में, शहरों में काम करती हैं। इनका एक अलग इलेक्शन होता है, इनके एक अलग कैंडिडेट्स बैठते हैं जो अपने स्फेयर, अपने रीजन को, अपने चीज़ों को गवर्न करते हैं। 1992 से पहले ही बन चुका था पंचायत और म्यूनिसिपालिटी, लेकिन प्रॉपर टाइम पे इनका इलेक्शन नहीं होता था। इनको प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती थी इलेक्शन करवाने के लिए, डेवलपमेंट वर्क करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी इन पे। सो 1992 में क्या हुआ, 1992 में ये चीज़ें बदल गई। 1992 में एक प्रॉपर फाइनेंस कमीशन बैठा, हर स्टेट के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बना, जिसका काम था सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपालिटी को पैसे देना ताकि वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर सकें। और 1992 के बाद फाइनेंस कमीशन बना, जिसके बाद इनको फंड्स की दिक्कत नहीं हुई। किसको? पंचायत और म्यूनिसिपालिटी को। रेगुलर टाइम पे इनका इलेक्शन करना कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कर दिया गया 1992 में, यानी अब इनका इलेक्शन को लैग नहीं कर सकते थे, हर 5 साल में इनका इलेक्शन होता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, दे आर द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर द क्लियर एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. So this is with the second chapter of federalism. If you have any doubts or queries regarding to this chapter, feel free to ask and I will definitely try to resolve all your questions. And if you like this session, please like, share and subscribe to my channel. And also अपने दोस्तों में, अपने peer groups में इस वीडियो को फैलाइए, जिनको ये वीडियो बेनिफिट पहुंचा सकता है उन तक ज़रूर पहुंचे. So thank you and have a nice day.